Good morning, everyone. In the last class, we just completed our exercise 8.1. Okay, so today we will start the new topic. So we just revised two or three topics first of all. First is intersecting lines. What are intersecting lines? If two lines meet each other at a point, they are called intersecting lines, and the point is called point of intersection. I told you in vertically opposite angles also. Okay, so there are two lines L and M. I told you to write lines, we have to write alphabets. Okay, so you can write capital alphabets A and B, C and D. Then A, B and C, D will be the lines intersecting to each other, and you can write them as small alphabets also. Okay, स्मॉल अल्फाबेट से भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें फिर आपको दोनों साइड्स में स्मॉल अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत नहीं है. Only one small alphabet is sufficient to represent one line. Okay, so L and M both are two lines. They are meeting each other at point O. एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे मिल रही है? O पे. So such type of lines are called intersecting lines, and this point is called point of intersection. Okay, now here L and M are intersecting lines. They are intersecting each other, and O is point of intersection where they are meeting to each other. Okay, now next is parallel lines. Two lines which do not meet each other at any point. They are just opposite of intersecting lines. Intersecting lines meet each other at one point. Okay, but parallel lines are those lines which do not or which never meet each other at any point. जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी point पे नहीं मिलती हैं. They are called parallel lines. Okay, for example, tell me examples. The edges of your table. आपकी जो टेबल होती है उसकी आमने सामने की जो edges होती हैं. What? Yes, railway track. Very good. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जो होता है उसमें भी ऑपोजिट साइड्स जो होती है एक दूसरे को कभी मीट नहीं करती हैं. स्क्वायर जो होता है. ओके, ग्रिल्स. आपकी जो विंडो की ग्रिल्स होती हैं जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, वर्टिकल. ओके, यस, स्केल. वेरी गुड हिमांशी. सो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस. Their opposite edges do not meet each other at any time. Okay, you can take the example of this paper also. This edge and this edge, they are parallel to each other. Okay, if you extend them infinitely, even then they will not meet to each other. अगर आप infinitely आप parallel lines को produce करते हो, yes हिमांशी, then उसके बावजूद भी वो एक दूसरे को meet नहीं करेंगे. It means parallel lines are those lines which never meet each other at any point. Okay, yes Jatin, good. Then the perpendicular distance between two parallel lines always remains same. दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मींस व्हिच मेक्स 90 डिग्री एंगल. ओके, जो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. ओके बेटा, पैरेलल के एग्जांपल काफी हो गए हैं. नाउ स्टॉप राइटिंग मैसेजेस. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, जो दो पैरेलल लाइंस होती है, हेयर एल एंड एम बोथ आर पैरेलल लाइंस टू ईच अदर. आई हैव ड्रॉन हेयर. एंड perpendicular distance between them, what do you mean by perpendicular distance? Perpendicular distance means they make 90 degree angle. ओके, तो उनके बीच की डिस्टेंस हर पॉइंट पे सेम होती है. परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है ना, आप किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर खींच लीजिए दोनों के बीच में, वो जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो उसके हर एक पॉइंट के लिए इक्वल होगी. ओके, इफ आई से देयर लेंथ्स आर ए, बी, सी, डी and E, then what will you write here? Perpendicular distances. Yes, very good. Perpendicular distances A is equals to B is equals to C is equals to D is equals to E. Okay, so this is the meaning of perpendicular distance at each point of parallel lines. Fine. Now, what is the symbol for parallel lines? If two lines are parallel, then we write two vertical lines between them to show their parallelism. Okay, अगर two lines parallel होती हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच में two vertical lines, जो जैसे parallel lines है ये दोनों, they are horizontal and they are parallel lines vertical. तो vertically two parallel lines हम draw करके दोनों lines को एक दूसरे का parallel बताते हैं. ठीक है, this is the representation of parallel lines. Fine. Now the next term that is new to you, it is transversal. What is a transversal? Okay, this is the new term for you. A line which intersects
इंटरसेक्ट्स मीन्स वो मिलती है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी लाइन को दूसरी लाइन को वो मीट करती है, मिलती है, कट करती है, ठीक है। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, कम से कम कितनी लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी, टू। मिनिमम टू लाइंस शुड बी देयर, ठीक है। तो एक लाइन है वो मिनिमम टू या उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती, एक लाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लाइन है वो मिनिमम टू लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे अगर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे मैंने टू लाइंस ड्रॉ की है, एल एंड एम। L and M are two lines, मैंने कहा आपको मिनिमम टू लाइंस चाहिए। एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल N, मैंने इसका नेम रखा है N, ये ट्रांसवर्सल है। ये इन दोनों लाइंस L और M को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, A एंड B। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये बेटा कैसा भी हो सकता है, कैसे भी इसकी स्लैंटिंग हो सकती है, मतलब कितने भी डिग्री का एंगल बना सकता है यहाँ पर। ओके, 90 डिग्री का बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती है, वर्टिकल इस तरीके से भी हो सकती है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड भी हो सकती है, ठीक है। देन बेटा आप अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड पे रखिए, लैंडस्केप मोड पे मत रखिए। देन दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये लाइन्स कैसी है, इंटरसेक्टिंग। इफ आई प्रोड्यूस देम, मैं इन दोनों को एल और एम इन दोनों को आगे प्रोड्यूस करूंगी तो वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आगे चलकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। लेकिन दिस इज द एग्जांपल फॉर पैरेलल लाइंस। एल और एम क्या है यहाँ पे, पैरेलल, एल इज पैरेलल टू एम, ओके। सो यहाँ पे ट्रांसवर्सल अगेन एन है, जो टू डिफरेंट पॉइंट्स पे ए और बी आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन विच द एन इज इंटरसेक्टिंग एल एंड एम, ओके। तो ए एंड बी टू डिफरेंट पॉइंट्स है, जहां पे ये जो एन लाइन आपको दिख रही है दैट इज ट्रांसवर्सल, वो एल और एम को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ध्यान रखिए एक पॉइंट पे कट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, फिर तो वो तीनों कॉन्करेंट लाइंस हो जाएंगी जो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। सो टू ड्रॉ द ट्रांसवर्सल इट मस्ट कट टू डिफरेंट लाइंस एट टू डिफरेंट points, okay। here line n is called transversal। आपको समझ में आ गया होगा what is transversal। the next topic is angles formed by a transversal with two lines। अब अगर कोई ट्रांसवर्सल टू लाइंस को, वो लाइंस कैसी भी हो सकती है, दे कैन बी हॉरिजॉन्टल और दे कैन बी वर्टिकल ऑल्सो, ओके। सो इफ they are or a transversal is cutting two lines or meeting them at two different points, then they will form some angles also। देखिए यहाँ पे टू लाइंस मैंने खींची हुई है एम एंड एन। अभी मैं पैरेलल लाइंस का एग्जांपल नहीं ले रही हूँ, ये पैरेलल भी हो सकती हैं, लेकिन जब पैरेलल होंगी ये दोनों लाइंस तो उसमें अलग कंडीशन हो जाती है। वी विल स्टडी दैट फर्दर, ओके। सो एम एंड एन, these both are two lines, if we produce them infinitely or produce them for some more length then they will intersect each other। ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, आप इसके डायग्राम से ही देख सकते हो, ठीक है। एंड L is the transversal because it is cutting both of the lines at two distinct points, two different points पे कट कर रही है। मैंने पॉइंट्स के नेम्स नहीं लिखे, आप चाहे तो पॉइंट्स के नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। सो in this case this transversal is making some angles with M and N। you can see with M it is making four angles, 1 2 3 and 4, and with N it is making also four angles, 5 6 7 and 8। Now according to their properties, what are the angles called, different types of angles these are, okay, such as the pairs of angles। जैसे हमने pairs of angles पढ़े थे उसी तरीके से यहाँ पर भी different angles पढ़ेंगे, okay। ये डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल बन रहे हैं, एल लाइन एम के साथ फोर एंगल्स बना रही है, 1 2 3 एंड 4, ओके। नाउ एल जो ट्रांसवर्सल है वो दूसरी लाइन एन के साथ 5 6 7 8 इस नेम के फोर एंगल्स बना रही है, ओके। सो इन द फिगर यू कैन सी, इन द फिगर ट्रांसवर्सल एल, ये जो ट्रांसवर्सल है एल इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइंस एम एंड एन को इंटरसेक्ट कर रहा है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, टू अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये टू अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। नाउ ट्रांसवर्सल एल
makes different types of angles with M and N. ट्रांसवर्सल L जो है वो M और N के साथ जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे अलग अलग टाइप्स के एंगल्स बनाते हैं. अब हम वो टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट है इंटीरियर एंगल्स. ओके, इंटीरियर का मतलब यू नो इनसाइड. इंटीरियर का मतलब क्या होता है? इनसाइड जो पार्ट होता है. जैसे कोई ट्राइंगल है उसके इंटीरियर पार्ट के बारे में आप बात करोगे, इसका मतलब द पार्ट इनसाइड द ट्राइंगल. ओके, सो इंटीरियर का मतलब है इनसाइड. यहाँ पे आप देखिए एम और एन, इसके बीच का जो एरिया है इट इज इनसाइड देम. ये जो एरिया है, ये बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है, ओके, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ एम एंड एन. ओके, जैसे एक रूम है, यहाँ पे अगर मैं दो लाइंस और बना दूं तो एक रूम टाइप का बन जाएगा, तो उसका इंटीरियर पार्ट क्या होगा? जो उसके अंदर का पार्ट है. ओके, एंड एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? जो इन लाइंस के बाहर की तरफ है, बाहर, एम के ऊपर की तरफ और एन से डाउनवर्ड्स. ओके, सो एक्सटीरियर पार्ट विल बी अपवर्ड्स द एम एंड डाउनवर्ड्स द एन, एंड इंटीरियर पार्ट विल बी बिटवीन एम एंड एन. एम और एन के बीच में जो होगा वो इंटीरियर पार्ट होगा, और उनके बाहर की तरफ जो होगा दैट विल बी एक्सटीरियर पार्ट. ओके, अन्य दिस इज ड्यू टू वीक नेटवर्क बेटा. सो कैन यू टेल मी, यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में कितने एंगल्स बन रहे हैं? उन एंगल्स का नेम बता सकते हैं आप मुझे? एम और एन के इंटीरियर पार्ट में कितने एंगल्स बन रहे हैं? So you can see in the interior part of M and N, four angles are made: angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. Okay, they are inside or between M and N. Okay, ये M और N के बीच में है या अंदर की तरफ है, ये भी बोल सकते हो. इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ और बिटवीन मतलब बीच में, दोनों का यहाँ पे सेम मतलब है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. These four angles are called interior angles because they are between M and N or inside M and N. Okay, now talk about exterior angles. Exterior angles are those angles which are outside these two lines M and N. M और N के बाहर की तरफ जो दो फोर एंगल्स बन रहे हैं. यस, वेरी गुड. 1, 2, 7 and 8. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are exterior angles because they are drawn outside of two lines M and N. ओके, एंगल 1 और 2 M से बाहर की तरफ बन रहे हैं और एंगल 7 और 8 N से बाहर की तरफ बन रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. आफ्टर दैट, alternate interior angles. Now what is the difference between interior angles and alternate interior angles? Don't get confused. ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर वर्ड से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये चारों जो इंटीरियर एंगल है इनके बारे में ही बात कर रहे हैं. बट ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? ऑल्टरनेट मतलब दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड. 4 लेफ्ट साइड में है तो उसके ऑपोजिट साइड में होगा 6 क्रॉस की शेप में. देखिए, दे आर फॉर्म्ड इन पेयर्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल में हमने कोई पेयर नहीं बनाया, वो अलग अलग लिखे हुए हैं. बट इन द ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, दे आर फॉर्म्ड इन द पेयर. ओके, एंड inside, they are inside or between lines M and N because they are interior. इंटीरियर है, नो होमवर्क इज देयर. इंटीरियर में है इसलिए इनसाइड होंगे M और N के, और क्रॉस शेप में होते हैं. ये क्रॉस शेप मतलब इस तरीके से 4 to 6 and 3 to 5. क्रॉस शेप इस तरीके की होती है. सो दे आर 4 to 6 and 3 to 5. सो पेयर में कौन कौन से आएंगे? 4, 6 और दूसरे पेयर में आएंगे 3, 5. ओके, सो 4 and 6 and angle 3 and angle 5, they are called alternate interior angles. What are they called? Alternate interior angles. Fine. कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट का मतलब क्रॉस शेप होगा. ओके, इंटीरियर का मतलब अंदर होंगे. तो M और N के अंदर की तरफ 4 एंगल्स है और उसमें क्रॉस शेप कैसे बनेगी? 4 to 6 and 3 to 5. तो 4 and 6 are alternate interior angles and 3 to 5 they are also alternate interior angles. Fine. So 4 type of angles are alternate exterior angles. Now we are talking about alternate exterior angles, means
दे आर ऑल्टरनेट मीन्स क्रॉस शेप में होते हैं, और एक्सटीरियर मीन्स दे आर आउटसाइड ऑफ टू लाइंस, ठीक है। एक्सटीरियर अभी अभी हमने पढ़ा है। एम और एन, इन दोनों लाइंस के बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल्स हैं? 1, 2, 7 एंड 8, ओके। एंड ऑल्टरनेट का मतलब क्रॉस शेप में, यानी 2 to 8 एंड 1 to 7 ऑपोजिट साइड में। ऐसा नहीं आप 2 और 7 को कर रहे हैं, नो। 2 राइट साइड में है तो 8 लेफ्ट साइड में है, 1 जो है वो लेफ्ट साइड में है तो 7 राइट साइड में है, मीन्स दे शुड बी इन द क्रॉस शेप. So 1 and 7 are alternate exterior angles, and 2 and 8 they are also alternate exterior angles. Okay, so it is simple. Alternate exterior angles, angle 2 and angle 8, angle 1 and angle 7. ये भी पेयर्स में होते हैं. इनके बारे में जब भी हम बात करेंगे तो दो एंगल्स की एक साथ बात करेंगे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो पेयर्स में होते हैं. फाइन. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? ये भी पेयर्स में होते हैं. ये भी पेयर्स में होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये ऑपोजिट साइड में ना हो करके सेम साइड में होते हैं. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं. देखिए, ये 2 है और ये 6, मतलब दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ हैं दोनों एंगल. सबसे पहली बात, दे मस्ट बी ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो एल के सेम साइड कौन कौन से एंगल है? राइट साइड में 2, 3, 6 एंड 7, और लेफ्ट साइड में जो एंगल्स हैं वो है 1, 4, 5 एंड 8. ओके, मींस वी विल टॉक अबाउट दीज एंगल्स. पेयर्स में इनके लिए बात करेंगे, लेकिन पेयर किसका किसके साथ होगा वो अब देखने वाली बात है, ठीक है. सो एम और एन के ऊपर की तरफ जो दोनों एंगल होंगे 2 and 6, ओके, they will be, yes, one exterior and one interior, very good. 2 and 6 will be corresponding angles. Similarly 3 and 7 they will be corresponding angles. मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो m और n के अपवर्ड्स जो एंगल है 2 and 6 they will be corresponding angles, और m और n के डाउनवर्ड्स जो एंगल्स है 3 and 7 वो भी corresponding angles होंगे. Similarly on the left side if I talk, तो m and n के अपवर्ड्स कौन कौन से एंगल्स है बेटा? 1 and 5 they will be corresponding angles, and downwards कौन कौन से हैं? 4 and 8 they will also be corresponding angles. So these will be the 4 pairs of corresponding angles: 2 and 6, 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7. ठीक है, ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स में आपने देखा था ये ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं क्रॉस शेप में, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सेम साइड में होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. मैंने पीछे लिखा हुआ है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ इसमें. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ओके, इंटीरियर एंगल्स you know 3, 4, 5 and 6. Interior angles are 3, 4, 5 and 6, but on the same side of transversal. सेम साइड पे कौन से हैं? राइट साइड में है 3 and 6 और लेफ्ट साइड में है 4 and 5. ओके, so they will be called interior angles on the same side of transversal. 3 and 6 इंटीरियर एंगल्स है और उसके राइट साइड में है. इसी तरीके से 4 and 5 ये भी इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में. सो ये भी पेयर में होंगे, एंड 3 का पेयर होगा 6 के साथ एंड 4 का पेयर होगा 5 के साथ. अगेन नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1, 2, 7 एंड 8. दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन से हैं? 2 and 7 जो एक्सटीरियर में है. ओके, एंड उसके लेफ्ट साइड में है 1 and 8 जो एक्सटीरियर में है. ठीक है, तो 2 का पेयर होगा 7 के साथ, 1 का पेयर होगा 8 के साथ. देखिए यहाँ पे मैंने पीछे लिखा भी हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 4 and 5, 3 and 6 जो अंदर की तरफ है, लेकिन राइट साइड वाला राइट साइड के साथ में, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ में. इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो बाहर की तरफ है, राइट वाले के साथ में और लेफ्ट वाले के साथ में. ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स एंगल्स विच अ ट्रांसवर्सल मेक विथ 2 लाइंस. जो 2 लाइंस के साथ में ट्रांसवर्सल डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाता है, मैंने पढ़ा दिए हैं बेटा. टुडे that was all for today, लेकिन you should revise them again and again at home because they all are new to you. ये सभी एंगल्स न्यू टाइप के हैं, एंड
अगर आप इनको बार बार नहीं पढ़ेंगे तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको। आप ये जो इतनी बार इंटीरियर वर्ड आ रहा है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ऑल्टरनेट और कॉरेस्पॉन्डिंग में बहुत कंफ्यूजन होगा, कौन से ऑपोजिट साइड में होते हैं, कौन से सेम साइड में होते हैं। इसलिए आप जितनी बार इनको पढ़ेंगे, मैं कितनी भी बार आपको समझा लूँ, लेकिन जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन, यू विल नॉट कम टू अंडरस्टैंड दैम। ओके, थैंक यू।